Hello students, good morning. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Today we will do second part of second unit of Hornbill book. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Alan East. I hope you saw the first part of this chapter. If you didn't see, please see the first part of this chapter. In first part, we read that a narrator, 37 years old businessman, and his wife Mary have dreamed to voyage around the world like the famous Captain James Cook. We comes to know that the size and shape of their ship named Wave Walker. They started their journey in 1976 from Plymouth, England. The initial period of 3-year journey was very pleasant and interesting. They employed 2 crewmen, Larry Wiggle and Herb Sigler, to help them tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. The second day of the encounter, strong winds and alarming weather. They celebrate Christmas and New Year on Wave Walker, despite the weather is very rough. On the early morning of January 2nd, the family faces strong, violent, mighty waves and screaming winds. They tried to slow down the boat by dropping the storm jib. In the evening, a huge, tremendous wave hits the deck of the boat and throws the narrator off the boat. The boat is just about to overturn when another huge and mighty wave comes and turns it right back. The narrator grabs the guardrails and sails into the boat's main boom. The narrator suffers injuries in his rib and mouth. His mouth is filled with blood. तो हमने देखा कि कैसे वो जो है वो बहुत डेंजरस तूफान में जो है वो फंस जाते हैं. वहीं से हम जो है वो आगे रीड करना स्टार्ट करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स बिगिन. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हर्ब जो हैं वो वाटर को पंप कर रहे थे आउट ऑफ वेव वॉकर, किसी पागल इंसान के जैसे. ब्रोकन टिम्बर्स इज अ वुड boat hung at crazy angles. The whole starboard is a side of a ship. Side buggled is swell. Inwards clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed means floated with a splashing sound. पानी में तैरना, जैसे कि फ्लड आता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है पानी में तैरती हैं. इट्स लाइक सेम. अबाउट इन डीप वाटर. तो यहाँ पर जो है हमारे नरेटर हमें बताते हैं कि स्टार बोर्ड जो है, साइड ऑफ द शिप जो है वो भी टूट चुका था. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट जो हैं, टिन्स, टॉय जो हैं वो पानी में तैर रहे थे पानी के अंदर. तो बहुत सारा नुकसान जो है वो वेव्स ने जो है वो बोट को पहुंचा दिया था. A half swam, half crawled. Crawled means रेंगना. Swam, तैरना. Into the children's cabin. Are you all right? मैं आधा तैरता हुआ और आधा रेंगता हुआ कहाँ पर गया? चिल्ड्रन के कैबिन में. कैबिन इज अ रूम. Are you all right? और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सब सही हो, ठीक हो? I asked. Yes, they answered from an upper bunk.
बंक इज अ बर्थ ऑफ फॉर स्लीपिंग, जैसे कि ट्रेन में बना हुआ था, तो वो ऊपर की बर्थ पे जो है वो सोने की जो बर्थ थी वहां पर थी। अब बंक इज अ बर्थ, जैसे ट्रेन में बना होता है। तो बच्चों ने वहां से आंसर दिया कि हाँ हम जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सर में थोड़ी सी चोट लगी है। सैड सू, सुजैन ने जो है वो कहा, सू ने जो है वो कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। तो क्या है यहाँ पर उनके बम्प बना हुआ सिर में, ऐसा लग रहा है कि उनका सर जो है, सू का जो सर है वो किसी चीज़ से टकराया गया है एंड इट स्वॉलन, और वहाँ पर सोजिश आ गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सर जो है किसी चीज़ से हिट किया है। एंड cabin is a room, clear? I had no time to worry about bump head, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं सू को जो चोट लगी है उस पर थोड़ा भी ध्यान दे पाता। उसके जो बम्प, जो सूजन आई हुई है, जो सूज के है, उसका हेड जो है, सर पे जो चोट लगी है उस पर मैं ध्यान दे पाता। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, कैनवास is a piece of cloth which used for many purpose. I struggled back on the deck. दोबारा मुझे डेक पे वापस आना था। मैंने वहाँ से हैमर, हथौड़ा लिया, स्क्रू लिए और कैनवास, a piece of cloth, कपड़े का एक टुकड़ा लिया और वापस डेक पर आ गया। With the starboard side bast is struck hard open. We were taking water with each wave that broke over us. क्योंकि इस स्टारबोर्ड जो है वो टूट चुका था, इसलिए जो भी वेव हमसे टकराती थी उसके बाद बहुत सारा पानी जो है वो वेव वॉकर के अंदर, वो हमारी बोट के अंदर चला आता था, शिप के अंदर चला आता था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर हम इमीडिएटली कुछ रिपेयर नहीं करते हैं तो हम जो है वो पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas. I already told you canvas a strong unbleached cloth and secure waterproof hatch cover across the gaping hole. हम जो है हमने वो कपड़ा लिया वहाँ से, हम और वाटरप्रूफ हैच लिए ताकि हम जो होल हो चुके थे स्टारबोर्ड के अंदर, जो फ्लोर था है ना, वहाँ पर जो होल हो चुके थे ताकि उसको हम फिल कर पाए, जिससे और ज़्यादा पानी जो है वो शिप के अंदर ना आ पाए। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over by the side. Deflected means turned aside. थोड़ा पानी अभी भी जो है शिप के अंदर आ रहा था, लेकिन बहुत सारा पानी जो है हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ से निकाल दिया था वेव वॉकर के अंदर से। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short-circuited. Debris is rubbish, बहुत बुरी तरीके से। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई जब हमारे हैंड पंप जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया, वो ब्लॉक हो गए और हमारे इलेक्ट्रिक पंप जो है वो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट हो चुके थे, तो पंप जो है वो खराब हो गए, जिससे पानी का लेवल जो है बोट के अंदर और भी ज़्यादा अराइज होने लगा। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, डरावना था, थ्रेटनिंगली मीन्स डरावना, पानी का लेवल जो है जो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था वो बहुत ही डरावना था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched. Wrenched means torn overboard along with the forestay. Our forestay is a rope to support ship's foremast.
जो आगे का हिस्सा है, आगे का मास्ट है, उसको सपोर्ट करने के लिए फोर स्टे का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ रोप जो शिप के आगे के हिस्से को थोड़ा स्टेबिलिटी देती है। से द जिप इज़ अ ट्रायंगुलर, है ना, जो कपड़ा वहाँ पर बांधा हुआ होता है शिप के ऊपर। द डिंगीज आर स्मॉल बोट, जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं बड़ी बोट के, बड़ी शिप के ऊपर, इमरजेंसी बोट जिनको बोलते हैं। एंड द मेन एंकर। अभी हम वापस जो है, मैंने ढूंढा तो मुझे 2 स्पेयर हैंड पंप्स मिले जो मैंने इमरजेंसी यूज़ के लिए रखे हुए थे, और मैंने वो फोर स्टे जो है, जो रस्सी जो है, उसको भी अच्छे से कैच किया, पकड़ा उसको। द जिप एंड डिंगीज, और स्मॉल बोट में जाकर देखा। एंड द मेन एंकर, और मेन एंकर इज अ इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ सम मेटल्स। एंकर जो है पानी को और बोट को जो है वो आपस में जोड़ता है। वो बोट से, शिप से पानी के अंदर रहता है ताकि वो बहुत तेज हवा से जो नुकसान होता है शिप को, उससे बचा पाए शिप को। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम के अंदर, चार्ट रूम फ्लोर पे, जहाँ पर चार्ट रूम हमारा बना हुआ है, वहाँ पर एक और भी इलेक्ट्रिक पंप है। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने उसको पाइप के साथ अटैच किया जिस पाइप से हम पानी बाहर निकाल रहे थे, और भगवान का शुक्र है कि वो पंप जो है वो वर्क कर रहा था, वो चल रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। तो पूरी रात जो बहुत ज़्यादा, उस रात बहुत ज़्यादा सर्दी थी क्योंकि जनवरी का टाइम था, 3 और 4 जनवरी का टाइम था। तो हमारा 3 चीज़ें हमें करनी थी। एक पंपिंग, पानी को बाहर निकालना, स्टीयरिंग को संभालना, और वर्किंग ऑन द रेडियो पे वर्क करना, ताकि हम पॉसिबल अगर हो पाए तो किसी को सिग्नल वहाँ से शेयर कर पाएँ और किसी से हेल्प ले पाएँ। हमारे ये तीनों ही काम थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज to our mayday calls. Mayday is distress call, which was not surprising in this remote corner of the world. लेकिन हमें हमारी जो रेडियो कॉल्स हम कर रहे थे उनका कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जो कि कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि हम जो हैं वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एरिया जो है वर्ल्ड का, वहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे, जहाँ पर कोई भी सिविलाइजेशन नहीं रहती थी। Sue's head had swollen alarmingly. तो सुजैन का जो हेड है वो यहाँ से swollen हो चुका था बहुत बुरी तरह से। She had 2 enormous black eyes, और उसकी आँख के ऊपर भी जो है वो पूरा ब्लैक हो चुका था। And now she showed us a deep cut on her arm. और अभी मैंने देखा कि उसके हाथ पे, आर्म पे भी जो है एक बहुत गहरा कट जो है वो लगा हुआ है। When I asked why she hadn't made more of her injuries, made more of मतलब अपनी इंजरीज के बारे में बताना, एक्सप्लेन करना। Before this, जब मैंने उससे पूछा कि तुझे इतनी गहरी चोट लगी है, अभी तक तूने इतनी जो तुझे इंजरी हुई है उसके बारे में बताया क्यों नहीं है? She replied, उसने रिप्लाई दिया, I didn't want to worry you, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। When you were trying to save us all, जब आप हम सबको बचाने के लिए लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो है वो सुजैन की मैच्योरिटी जो है वो हमारे सामने आती है, जो कि सिर्फ 7 इयर्स की थी। तो कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी ज़्यादा समझदार होगी?
By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अभी तक जो है 3 जनवरी तक हम नॉन स्टॉप वर्किंग कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि पंप ने जो है इतना पानी बाहर निकाल दिया था कि सिचुएशन जो है अभी अंडर कंट्रोल थी, आउट ऑफ डेंजर थी. अब हमारे लिए चिंता की ज़्यादा बात नहीं थी और सिचुएशन इतनी कंट्रोल में हो चुकी थी कि हम रोटेशन में 2-2 घंटे के लिए आराम कर सकते थे. अभी तक हम जो है नॉन स्टॉप काम कर रहे थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा, ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा लीकेज कहीं ना कहीं से हो रही थी वाटर लाइन से. वाटर लाइन क्या होती है? यहाँ पर आप अगर देख पाओ तो पानी के ऊपर बोट चलती है, तो कुछ हिस्सा जो है वो पानी के नीचे रहता है. बड़ी शिप का जो कुछ हिस्सा है ना, वो पानी के नीचे रहता है, जो उसका स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना. और वाटर का जो है ये वाला जो है जो हिस्सा जो है वो वाटर लाइन है. यहाँ से मेन बोट जो है वो शुरू होती है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो नीचे रहता है. तो शायद यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही थी. ऑन चेकिंग, जब हमने चेक किया, आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड. मेन रिब्स जो हैं वो टूट चुके हैं. स्मैश्ड मीन्स बैडली ब्रोकन. डाउन टू द कील. कील इज यहाँ से नीचे से. कील इज अ स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप. जो शिप के बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, स्टील स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है बोट के अंदर. जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ से पानी शुरू होता है, सी लेवल शुरू होता है ना, और कुछ हिस्सा जो है वो बोट का नीचे की तरफ रहता है. इट इज़ अ, यहाँ से जो है ये है वाटर लाइन. कुछ हिस्सा ऊपर है बोट का, बहुत सारा हिस्सा ऊपर है और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ है. इट इज, तो यहाँ पर क्या है वो लीकेज थी. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. तो है hull is the main bottom part of the ship. Hull is the main bottom part of the ship. तो क्योंकि शिप जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड, एक्सेप्शनली डैमेज हो चुकी थी, सिर्फ कुछ हिस्सा ही जो था, कुछ पार्टीशन जो था, स्टारबोर्ड इज अ फ्रेमवर्क, कुछ हिस्सा जो है वही बचा हुआ था, बाकी सारा जो है वो पानी की वजह से, वो लहरों की वजह से टूट चुका था. अभी हमें इमीडिएटली रिपेयर करनी थी, नहीं तो हम डूब सकते थे. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. जब से लहरें जो हैं, वेव जो हैं हमारी शिप के साथ टकराई थी, हमारी बोट के साथ टकराई थी, वेव वॉकर के साथ, उसके बाद हमने किसी तरीके से 15 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव हम कर चुके थे. वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अब वेव वॉकर इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि वो डैमेज हो चुकी थी. हमें उसको जल्दी से रिपेयर करना था कि वो हमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे. वेव वॉकर इस हालत में नहीं थी. आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. यहाँ पर वो अभी थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर अभी वो थे. तो उन्होंने अपने चार्ट्स अपना चेक किए, सब चीज़ों को कैलकुलेट किया और उन्होंने देखा, मैप चेक किया कि यहाँ पर पास में कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पर ईस्ट की डायरेक्शन में, है ना, ईस्ट की डायरेक्शन में 2 छोटे आइलैंड्स हैं. अगर हम किसी तरीके वहाँ पर पहुँच पाएँ तो शायद हमें वहाँ से कोई हेल्प मिल जाए. ऑस्ट्रेलिया पहुँच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वेव वॉकर की हालत ऐसी नहीं थी. वन ऑफ देम, इली एम्स्टर्डम, was a French scientific base. For only hope to reach these pinpricks, a pring caused by a
पिन। पिन प्रिंट्स क्या होता है? जैसे आप सुई लेकर, एक पिन लेकर अपने आर्म पे टच करो, जब अपने हैंड पे टच करो तो वहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा एक होल होता है ना, और वहाँ से खून निकलना आपका चालू हो जाएगा। इन द वास्ट ओशन, पिन प्रिंट्स इन द वास्ट ओशन, मतलब वो बहुत बड़ा ओशन था, लेकिन एले एम्स्टर्डम जो है, एले एम्स्टर्डम जो है वो इतना छोटा आइलैंड था जैसे कि छोटा पत्थर का टुकड़ा हो, वो ऐसा दिखाई दे रहा था। इट्स लाइक अ पिन प्रिंट्स इन द वास्ट ओशन। द टू स्मॉल आइलैंड इन द वास्ट ओशन वर वेरी टिनी लाइक द प्रिंट्स कॉस्ड बाय अ पिन। तो उनका साइज जो है बहुत ज़्यादा छोटा था। राइटर हमें ये बताना चाहते हैं। और एली एम्स्टर्डम कहाँ है? यहाँ पर अगर आप देख पाओ, दिस इज द इंडियन ओशन एंड यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है इट इज़ एले एम्स्टर्डम, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक बेस है, जो कि फ्रांस की प्रॉपर्टी है। और ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पिन प्रिंट्स हो यहाँ पर। बट अनलेस द विंड एंड सीज abated means to become less intense, so we could host sail, our chances would be slim indeed। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी था कि हवा जो है वो थोड़ी कम हो जाए, ताकि हम होस्ट सेल जो है वो होस्ट कर पाएँ, फ्लैग होस्ट कर पाएँ, है ना, और हम वहाँ पर पहुँच पाएँ एले एम्स्टर्डम में। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्लिम मतलब कम, बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि एयर की जो स्पीड थी अभी भी ज़्यादा थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आउट ऑक्सिलरी इंजन मीन्स सेकेंड एमरजेंसी इंजन, एक्स्ट्रा एमरजेंसी इंजन आउट ऑफ एक्शन। वो ऑलरेडी वर्क कर रहा था जो एक्स्ट्रा इंजन था, और वेव जो थी लगातार उससे टकरा रही थी, जिसकी वजह से वो इंजन भी जो है उसने काम करना बंद कर दिया। इट वॉज ऑल्सो आउट ऑफ एक्शन। जो सेकेंड इंजन, जो एमरजेंसी इंजन था, उसने भी काम करना बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस pumping, we reached the last few centimeter of water। few centimeter मतलब थोड़ा सा ही पानी अभी वापस वेव वॉकर के अंदर बचा हुआ था। 36 घंटे से हम कंटिन्यूसली पंपिंग कर रहे थे। अभी भी जनवरी 4 को थोड़ा सा पानी जो है वेव वॉकर में फ्यू सेंटीमीटर बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मास्ट पे हम जो है वो कोई सेल नहीं कर सकते थे, होस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो टूट जाता। हमें जो है क्या करना था, जो पानी अभी हमारी शिप के अंदर आ रहा था, हमारी बोट के अंदर आ रहा था, उसको ही हमें बाहर निकालना था। प्रेशर ऑन द रिजिंग is a rope and wires would simply pull the damaged section of the hull. The hull, I already told you, the framework of the vessel or ship apart. So we hoisted the storm ship and headed for where I thought the two islands were. हमने किसी तरीके से जो है शिप को बचाया, डैमेज जो है कम किया, जो डैमेज हो चुका था उसको रिपेयर करने की कोशिश की, और हमने जो स्टॉर्म जिप था उसको लहराया हवा में, और जहाँ पर हमें लग रहा था कि एले एम्स्टर्डम वो जो आइलैंड है वो होगा, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स and we ate our first meal in almost 2 days। तो मेरी जो वाइफ थी, उन्होंने एक छोटा सा कॉर्न बीफ जो है ना, वो ढूंढा, फाइंड किया अंदर से, किचन में से, और कुछ बिस्किट जो है उसे मिले, और हमने लगभग 2 दिन के बाद हमने कुछ खाया।
बट आवर रिस्पाइट इज ए रिलीफ फॉर शॉर्ट लिव। लेकिन हमारी जो सिचुएशन कंट्रोल में थी वो कुछ देर के लिए ही थी। दोबारा से क्या शुरू हो गया? एट 4 PM 4 बजे से ही ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारी बोट के पीछे, वेव वॉकर के पीछे घने काले बादल जो है वो आसमान में छाने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। 1 घंटे के अंदर ही एयर की जो स्पीड है, जो विंड की जो स्पीड है वो 40 नॉट्स तक बढ़ गई। एंड द सी वर गेटिंग हायर, और दोबारा से वेव्स जो है उठना शुरू हो गई। हमारा रिलीफ जो था वो टेम्परेरी था, शॉर्ट लिव था। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रिएट मीन्स गेट रोज, और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा था मौसम जो था। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात मौसम खराब होता रहा। एंड बाय dawn on January 5 our situation was again desperate। और 5 जनवरी तक हमारी सिचुएशन जो थी दोबारा ही 2 और 3 जनवरी जैसी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, we are going to die? जब मैं बच्चों के पास पहुंचा तो जॉन ने मुझे बोला, पापा क्या हम मरने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डाई। आई ट्राई टू एश्योर हिम। मैं उसे बताना चाहता था, अश्योर करना चाहता था दैट वी कुड मेक इट, कि हम मैनेज कर लेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम अपने आप को बचा लेंगे। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। बट डैडी, वी वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू and mummy, Sue and I। तो it is a dialogue of John, the little kid, son of a narrator. It is a dialogue of him. He told, we aren't afraid of dying if we can all be together। हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम जो है वो एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो भी हमें मरने से डर नहीं लगता। सो दिस इज द डायलॉग, है ना, जो कि जॉन द्वारा बोला गया है। कि वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, you, mummy, Sue and I। And it is a title of our chapter, we aren't afraid to die if we can all be together। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायलॉग किसके द्वारा बोला गया, कौन सी सिचुएशन में बोला गया? एंड दिस डायलॉग प्रोवाइड द इंस्पायरेशन टू नरेटर। नेक्स्ट इज, I could find no words with which to respond, but I felt I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। मैं जॉन के द्वारा जो ये लाइन बोली गई उसका क्या जवाब दूं? वो सिचुएशन में नहीं था। बस मैंने जो है वो चिल्ड्रंस कैबिन से, उनके रूम से बाहर आ गया और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली जॉन की इस बात से। और मैंने फैसला किया कि मैं हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं हम पूरे जोश के साथ उन सब चीज़ों से, जो वेव्स समुद्र में उठ रही थी, लास्ट ब्रेथ तक हम उनका सामना करेंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइड टू लीव टू रेस और लिफ्ट विद एफर्ट with the undamaged port hull facing the oncoming wave, using an improvised जिसको हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो यूज़ करके कोई चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, नाइलॉन की रोप के साथ, विथ 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफाइन। पैराफाइन इज अ लिक्विड। तो जो वीकेंड
सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड थी उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं उसको थोड़ा ऊपर उठाऊंगा, उसकी रिपेयर करूंगा, है ना। किसके साथ? विद अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव। और जो अनडैमेज्ड हल है हिस्सा जो है उसको हम और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसमें हम सुधार करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, उसको सी एंकर को इम्प्रोवाइज करेंगे नायलॉन क्लॉथ के साथ, रस्सी के साथ जो है हम जो एंकर है हमारा उसको हम बांध देंगे। किसके साथ? वो 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल इज अ टीन, है ना, डिब्बे। जो हमारे पास डिब्बे थे 22 लीटर्स जिसकी कैपेसिटी थी, और उसमें क्या रखा हुआ था? पैराफिन ऑयल हमने रखा हुआ था। उसके साथ मैंने जो है सी एंकर को जो है वो टाई कर दिया, उसको बांध दिया। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. उस शाम मैं और मैरी, है ना, हम उदासी में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। जो डैमेज हो चुका था, जो पार्ट, जो प्लैंक्स बन चुके थे, जो हिस्सा टूट चुका था, पानी अभी भी वहाँ से बोट के अंदर आ रहा था और हमें लग रहा था, मैरी को भी और मुझे भी लग रहा था, वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, कि हमारी डेथ जो है वो बहुत पास है, हम जल्दी ही मर जाने वाले हैं। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Sextant क्या है? An instrument with graduated arch of 60 degree of taking altitudes and navigation. तो sextant क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए शिप में और प्लेन में आप कहाँ पर हो वो पता कर सकते हैं और आपका रास्ता जो है उसको नेविगेट कर सकते हैं, कौन से दिशा की तरफ आपको बढ़ना है। आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जान सकते हो सेक्सटेंट के ज़रिए। लेकिन वेव वॉकर जो है वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसने उस स्टॉर्म का जो है बहुत अच्छे से सामना किया था। जनवरी 6 को विंड जो है ईजिंग मतलब थोड़ी कम हो गई थी, विंड की जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई थी। तो मैंने वो सेक्सटेंट पे रीड किया कि हम कहाँ पर हैं, है ना। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू चेकिंग द डिस्टेंस और एंगल्स, क्लियर, कि हम कौन सी पोजीशन में हैं, कहाँ पर हैं, वो सब चेक करने के लिए। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में वापस आया। आई वॉकड ऑन विंड स्पीड, मैंने जानने की कोशिश की व्हाट स्पीड ऑफ द विंड, चेंजेस ऑफ कोर्स, कि क्या क्या चेंज आ रहा है, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि हम अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर पाएँ। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चेक किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट, जो सबसे अच्छी चीज़ मैं ढूंढ पाया वो क्या थी, that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. जो ओशन जो था, है ना, जो मोर देन 150,000 किलोमीटर था, उसमें हम सिर्फ जो आइलैंड था LA एम्स्टर्डम, उसकी विड्थ कितनी थी? ओनली 65 किलोमीटर। वो आइलैंड के बिल्कुल हम पास में पहुंच चुके थे। तो ये एक रिलीफ देने वाली बात थी कि हम वो आइलैंड पे पहुंच जाएंगे जल्दी ही और वहाँ से शायद हमें कुछ हेल्प जो है वो मिल पाए। तो आगे नरेटर और उनकी फैमिली के साथ क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फाइनल पार्ट जो है वो बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आई होप यू अंडरस्टूड this part very well. If you have any doubt, you can call me anytime.
Thank you very much. Thanks.